Hello children, this is the platform of Diya Academy, and today the topic that we are going to study is active and passive voice. So what happens in active passive voice is that if there's an interchange of subject and object. If a sentence begins with the subject, and we all know what is a subject, the thing that does the work is called as the subject. जो भी काम करे, जो भी noun काम करे या pronoun काम करे, तो उसे हम subject बोलते हैं, और जिस पर वो काम करे उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो इन द एक्टिव वॉइस व्हाट हैपेंस, द सेंटेंस बिगिंस विद द subject, and when we talk about the passive voice, then what happens, that gets interchanged. We begin the sentence with an object and it ends with a subject. Okay, so a very easy topic, just we have to follow a few rules and we will be easily able to solve the sentences or transformation. Basically it's a topic of transformation of sentences. ये transformation of sentences के अंदर आता है, और इसमें we just have to change from one form to another. So let's begin. Active and passive voice. Voice is that form of a verb which shows whether the subject of a verb acts or is acted upon Okay. So voice क्या है? Basically ये बताता है that form of verb whether the subject of a verb acts or is acted upon, कि सब्जेक्ट ने काम किया है या सब्जेक्ट पर काम हुआ है. ठीक है. Now voices of two types, active voice and passive voice. Now let's see with an example. Lata sings a song, and there is another one, that is a song is sung by Lata. So in the first sentence you can see that the subject is Lata. So in the first sentence you can see that the subject is Lata. Okay, and in the second sentence a song is sung by Lata. So here Lata was subject and a song was the object. लता काम कर रही है, लता सब्जेक्ट है, और वो सिंग क्या कर रही है? सॉन्ग को. तो सॉन्ग वहां पर ऑब्जेक्ट है. But in the second sentence, what is happening? We are writing a song is sung by Lata. So in this sentence, a song is the object and Lata is the subject. But here the object has come in front and subject has gone back. ठीक है? So this is how. So the above sentence is in active voice and this one is in passive voice. So let's read. In sentence 1, the subject performs the action, while the second sentence the subject of the verb is acted upon. तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि लता जो है वो काम कर रही है, वो क्या कर रही है? वो सॉन्ग गा रही है. और दूसरे सेंटेंस में सॉन्ग विच इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है. और यहाँ पर अ सॉन्ग इज संग बाय लता, तो यहाँ पर एक्चुअल सब्जेक्ट तो लता थी, तो लता पर काम हो रहा है कि सॉन्ग गा कौन रहा है? लता. ठीक है. इट मीन द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस. तो सेकंड सेंटेंस में क्या हुआ? जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है. एक्टिव वॉइस. When the subject of a verb acts, the verb is said to be in active voice. जब काम सब्जेक्ट करे किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में क्या कहते हैं? उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I made a mistake. तो in this sentence, I is the subject. And mistake is the object. ठीक है. And when the object of the active voice becomes the subject, the verb is said to be in the passive voice. और यही ऑब्जेक्ट जो है जब सब्जेक्ट बन जाए तब उसको कहते हैं हम पैसिव वॉइस. यानी कि यू कैन सी द एग्जांपल, अ मिस्टेक वाज मेड बाय मी. तो इन दिस सेंटेंस अ मिस्टेक इज एक्टिंग लाइक अ subject here, and
मी इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी भी काम मी ही कर रहा है और काम वो मिस्टेक ही रहा है, लेकिन क्योंकि वो आगे आ गया है तो इस तरह लग रहा है कि मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट बन गया और मी जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक rule that we have to follow while converting from active to passive। ठीक है, now let's move to the next page। Now we are going to read some rules। Now these are some of the rules that we have to follow while converting from one form voice to another। So some rules are to be considered while changing a verb from active to passive voice। What is the first rule? The object of the active voice is made the subject of the passive voice। कि जो एक्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, ये कोई यहाँ पे एक और एग्जांपल भी गिवन है, पीपल हैव बर्न्ड द व्हीकल्स हैव बीन बर्न्ड। तो जो पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था यानी कि व्हीकल्स, तो पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। Secondly, the subject of the active verb becomes the object of some preposition। Now in some cases yes, the second example, if you see, he has done his work has been done by him। तो यहाँ पर जो active verb का subject था वो he, वो यहाँ पर पीछे चला गया और इसके आगे हम लोग क्या लगा रहे हैं, by लगा रहे हैं। ठीक है, the subject of the active verb becomes the object of some preposition by। तो यहाँ पर preposition यूज करेंगे हम by और उसके बाद हमारा subject आ जाएगा। ठीक है, the third rule, the verb of the active voice gets the past participle form of the finite verb and some form of the verb to be, जिसके अंदर be, is, am, are, has, have, has been, was, were, had been, will be, is being सब आ जाता है, will be used before it in the passive voice। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्ब का एक्टिव वॉइस में जो वर्ब था, जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी द वर्ब इज बर्न्ड। ठीक है, अब व्हेन वी आर चेंजिंग इट इनटू द पैसिव वॉइस, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब को फॉर्म चेंज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर यू कैन सी कि हैव बर्न्ड का हो गया हैव बीन बर्न्ड। ठीक है, सो इट्स रिटन एंड सम फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का कोई भी फॉर्म, इन सब में से कोई भी फॉर्म यूज किया जाएगा, विल बी यूज बिफोर इट इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इनमें से कोई भी एक फॉर्म आगे लग जाएगा। नेक्स्ट, some vague and indefinite subjects like everyone, they, people, someone, somebody, everybody, anybody, etc. are dropped if they are the subjects of the active voice। If so, the preposition by is also not used। तो कुछ वेग यानी कि यूजलेस अगर सब्जेक्ट्स है जिनका लगाना जरूरी नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो, जैसे कि और एवरीबॉडी है, समबडी है, समवन है, जहां पर अंडरस्टूड होता है कि कौन सब्जेक्ट होगा, कौन काम कर रहा होगा, तो ऐसे केस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वी ड्रॉप दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी तो बाय का भी हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट ही हटा देते हैं, तो बाय का भी यूज नहीं करते हैं। कैसे? For examples, people have burnt the vehicles। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने बनाया the vehicles have been burnt। तो in the first sentence the subject was people। ठीक है,
अब इसका जो हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाया, द व्हीकल्स हैव बीन बर्न्ड बाय पीपल, वी शुड राइट बाय पीपल आल्सो, क्योंकि रूल ये कहता है कि अब लास्ट में हम लोग अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, बट यहाँ पर बाय पीपल तो है ही नहीं, दैट इज मिसिंग, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड। पीपल हैव बर्न्ड द व्हीकल्स हैव बीन बर्न्ड, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर व्हीकल्स जले हैं तो किसी लोगों ने ही जलाया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो बाय पीपल यहाँ पर नहीं लिखेंगे और सिर्फ यहीं पर उसको एंड कर देंगे, बस द व्हीकल हैव बीन बर्न्ड, ठीक है। तो ये हर जगह नहीं करना होता है, बस कुछ ही जगहों पर ऐसा करते हैं। नेक्स्ट रूल, द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्टिव में लिखा हुआ है ही हैज डन हिज वर्क, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो यू कैन सी यहाँ पर हैज डन हम लोगों ने यूज किया। अब हैज डन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब हमने बनाया कि हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम, तो यहाँ पर भी हम लोग यू कैन सी हैज डन ही लगा हुआ है, बीच में भले ही बीन ऐड हो गया है बट द टेंस इज स्टिल द सेम। अभी भी वो टेंस सेम ही है, वो बीन हमने सिर्फ यू इस वाले रूल के अकॉर्डिंग लगाया, जो थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीन लगाया है। अगर अदरवाइज हियर अगेन द टेंस ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट परफेक्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पर हैज लगा हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक है। नेक्स्ट रूल, व्हेन प्रोनाउंस एक्ट एज सब्जेक्ट चेंज आर एज फॉलोज। अब ये तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे नाउन का चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर पीपल था तो वो नाउन था, तो वो कैसे चेंज हुआ। अब हम लोग देखेंगे अगर प्रोनाउन लगा है तो हाउ विल वी चेंज द प्रोनाउन, ठीक है। 1 सेकेंड, okay, so now let's see that how we change the pronouns when we are changing from active to passive voice. So remember I becomes me, जब I subject है तो आगे लगा हुआ है तो वो I है, लेकिन जब वो सेकंड सेंटेंस यानी पैसिव में पीछे चला गया तो I का क्या बन गया? Me बन गया। Similarly we becomes us, we का us हो जाएगा। You becomes you, you में कोई चेंज नहीं है तो you का you ही रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में। Then she becomes her, he becomes him, they becomes them, it becomes it, it में भी कोई चेंज नहीं है, and who becomes whom, who चेंज होकर whom बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। I will cook the dinner, तो ये पैसिव में हो जाएगा the dinner will be cooked by me, तो यहाँ पर I जो था वो सब्जेक्ट था और यहाँ पर ये बन गया ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे तो उसको सब्जेक्ट ही, क्योंकि वो काम तो अभी भी वही कर रहा है, ठीक है, बट अब वो इट इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो आई बिकम्स मी, ठीक है। वैसे अगर है वी, जैसे वी विल कुक द डिनर तो हो जाएगा डिनर विल बी कुक्ड बाय अस। वैसे ही अगर है शी विल कुक द डिनर तो हो जाएगा द डिनर विल बी कुक्ड बाय हर। दे विल कुक द डिनर तो हो जाएगा द डिनर विल बी कुक्ड बाय देम, ठीक है। So like this we change the pronouns from one form to another, ठीक है। Now let's move to some more rules, and these rules are related to the change of tenses, कि tenses जब change होते हैं तो हम लोगों को कैसे रूल फॉलो करना चाहिए एंड हाउ वी शुड चेंज। तो हर टेंस के लिए अलग अलग रूल है एंड वी हैव टू चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल।
ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट रूल इज फॉर प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 फॉर्म है, यू नो। तो यहाँ पर इससे 3 ही फॉर्म का चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्हीं तीनों का हमें रूल पढ़ना है प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। तो एक्टिव में लिखा है, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे आगे सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल, जैसे कि ही रीड्स अ बुक। मैं यहाँ पर एस लगा लेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए रीड्स होगा, ठीक है। ही रीड्स अ बुक। नाउ यू कैन सी ही इज द सब्जेक्ट, रीड्स इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड बुक इज द ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस। तो रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। तो ही रीड्स अ बुक का क्या हो जाएगा, अ बुक इज रेड बाय हिम। तो यहां पर अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर में से हम लोगों ने इज चूज किया, वाई बिकॉज जो बुक है वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है, इसलिए हम लोग ने बुक इज लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। तो हम लोग स्पेलिंग तो सेम ही रहती है, तो हम लोग रीड लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उसको रेड है, रेड। और फिर आ जाएगा बाय और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ही। तो अ बुक इज रेड बाय हिम, ठीक है। सो यू कैन सी कैसे हम लोगों ने उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ही रीड्स अ बुक का हो जाएगा अ बुक इज रेड बाय हिम। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही आगे था, ही सब्जेक्ट था और बुक ऑब्जेक्ट था। सेकेंड सेंटेंस में बुक सब्जेक्ट बन चुका है और हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो तो जैसे बोलने में है, पर एक्चुअल में तो अभी भी हिम ही सब्जेक्ट है। ये रीड तो बुक हिम ही कर रहा है और काम किस पर हो रहा है, बुक पर, ठीक है। तो द रीजन, द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते क्यों हैं। अगर हम उसी बात को एक्टिव में लिख सकते हैं तो व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग इट इन पैसिव फॉर्म। सो द रीजन इज दैट व्हेन वी नीड टू शो मोर इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, कभी कभी सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है, जिसने काम किया उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिस पर काम हुआ उसकी इंपॉर्टेंस है। तो उस केस में हम लोग एक्टिव वॉइस बना लिखकर वी राइट इन द पैसिव वॉइस। तो अब ही रीड्स अ बुक का हो जाएगा अ बुक इज रेड बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी कि हम लोगों ने इज क्यों लगाया है, बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और ये दूसरी बात, यहाँ पर बुक जो है वो सिंगुलर है। अगर ये बुक के जगह बुक्स होता तो हम लोग लिखते बुक्स आर रेड बाय हिम, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर, ये तो हम लोगों ने वर्ब में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यू ऑल नो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन चीजों की बात करते हैं जो काम हो रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन एक्टिव, फर्स्ट वी हैव द सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जिसको वर्ब आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल है दे आर हेल्पिंग मी। सो इन दिस सेंटेंस दे इज द सब्जेक्ट क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं, फिर आर है क्योंकि दे प्लूरल होता है, फिर हेल्पिंग है, हेल्प के आईएनजी लग गया हेल्पिंग, एंड मी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दे आर हेल्पिंग मी। नाउ मी हैज टू कम इन फ्रंट, मी ऑब्जेक्ट है तो मी आगे आएगा। अब मी आगे आता है तो क्या बन जाता है, आई, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। तब क्या लिखेंगे, I am being helped by them. So I is the object, फिर is, am और are में से I am लगेगा क्योंकि I साथ am लगता है helping verb. Then we have being, then we have verb third form, then by and then subject. So they are helping me का हो जाएगा I am being helped by them. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में लगा लिया। एंड व्हाट इज द न्यू थिंग दैट वी हैव एडेड, यहां पर हम लोगों ने नई चीज जो ऐड की है वो है बीइंग,
ठीक है, तो याद रखना जब भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, देन वी हैव टू ऐड बीइंग। तो यहाँ पर हम लोग अगर दे आर हेल्पिंग मी की जगह कोई और सब्जेक्ट यूज करें, फॉर एग्जाम्पल लिखे राहुल इज हेल्पिंग मी, ठीक है, देन इट पैसिव वॉइस विल बिकम आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय राहुल। तो यहाँ पे आर की जगह क्योंकि आई आगे आ गया है तो आई एम बीइंग हो गया। अगर होता राहुल इज हेल्पिंग द चिल्ड्रन, तो ऑब्जेक्ट जब आगे आता तो होता द चिल्ड्रन आर बीइंग हेल्प्ड बाय राहुल। तो क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो एम की जगह क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, ठीक है। Now let's move to the next form, that is present perfect tense. In active it is written, the structure is subject plus has or have plus verb, third form plus object। तो सबसे आगे सब्जेक्ट होगा, फिर हैज हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो कैसे है एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव वन अ प्राइज, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर हैज या हैव में से हैव लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वन है और फिर ऑब्जेक्ट है। यू नो कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं, एक बात की प्लस पॉइंट ये है कि अब वर्ब का चेंज नहीं करना है, क्योंकि परफेक्ट में तो पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वही उठाकर हमको पैसिव में लिख देनी है, ठीक है। तो इन पैसिव तो आई हैव वन अ प्राइज, नाउ व्हेन वी राइट इट इन पैसिव वॉइस तो क्या हो जाएगा, अ प्राइज has been won by me, a prize has been won by me। so in this now the object has come in front, तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने has का यूज किया है, तो have के जहां लगाएंगे has, then we have been and then we have the verb third form one, फिर by और फिर me। तो जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस में being का यूज किया था, in the same manner in the perfect tense now we will use been। तो यहाँ पे हम लोग been का यूज करेंगे, ठीक है। so this is the rule for your present perfect tense। today I am only keeping it till here, till present perfect tense। in the next lecture I will be continuing with past tense, okay। I hope you don't have any doubt, it's a very easy topic। if you have any doubt you can ask in the comment section। Hello children, it's the platform of Diya Academy and today we'll be continuing with the chapter that is the active and passive voice, okay। so in the previous video I had told you rules of changing tenses and we had done till present perfect tense। so today I'll be continuing with the next rule, that is the change for simple past tense, ठीक है। I hope there is no doubt, we had done the introductory part yesterday। so in simple past tense as we know कि हम उन चीजों की बात करते हैं जो काम होते थे, ठीक है, या जो काम हो गए, वो चीजें सिंपल पास्ट में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देयर, वी डिड नॉट ग्रो राइस, यानी हम राइस नहीं उगाते थे, वी डिड नॉट ग्रो राइस। तो हियर वी हैव द सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। और जब हम इसका पैसिव फॉर्म लिखेंगे तो यही ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, यानी कि जो राइस है दैट विल, दिस राइस विल कम इन फ्रंट, ठीक है। देन वी विल हैव वॉज, और वॉज क्योंकि राइस सिंगुलर है, नॉट ग्रोन बाय अस। तो इन द पैसिव वॉइस यू कैन सी ऑब्जेक्ट इज देयर, देन वॉज और वर्ब में से वॉज लगाया, देन वर्ब थर्ड फॉर्म ग्रो का ग्रोन हो गया और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। सो वी डिड नॉट ग्रो राइस बन जाएगा द राइस वाज नॉट ग्रोन बाय अस। बाकी वी का जो अस में चेंज है वो हम लोगों ने कल प्रोनाउन में किया था, ठीक है। सो लाइक दिस वी चेंज फ्रॉम सिंपल पास्ट, द सिंपल पास्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देखा था, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, इज, एम या आर लगा रहे थे और साथ में बीइंग और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी। सिर्फ फर्क इतना होगा कि इस बार हम लोग एम इज आर के जगह क्या लगाएंगे, वाज या फिर वर लगाएंगे, साथ में बीइंग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मालूम है कि उन चीजों की बात करते हैं जो काम हो रहे थे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, शी वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही थी।
इसका जब हम लोग पास्ट एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी बिगिन विद चेस, चेस वाज बीइंग प्लेड बाय हर, चेस वाज बीइंग प्लेड बाय हर, सबसे पहले आ गया, फिर वाज या वन पे वाज लग गया क्योंकि चेस तो सिंगुलर है, और फिर बीइंग आ गया, फिर प्लेड आ गया, फिर बाय और फिर हर। ठीक है, दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में वो बातें लिखते हैं जो काम हो चुके थे। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट भी किया था जहां पे हम हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बट फिर पैसिव फॉर्म बनाने के लिए वी हैड यूज्ड अ न्यू वर्ड, अ न्यू हेल्पिंग वर्ब एंड दैट वाज बीन। तो यहाँ पर भी जब हम लोग पास्ट परफेक्ट बना रहे होंगे तो हम लोगों को हैड के बाद बीन लगाना पड़ेगा, फिर साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय लगेगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा। So for example, a sentence is here, she had solved the sums, she had solved the sums। ठीक है, जब ये had है, had is a verb की थर्ड फॉर्म है। और इसका हम लोगों ने जब पैसिव बनाया तो sums आगे आ गया, the sums had been solved by them। तो had got been solved by her, sorry she का her हो गया। ठीक है, so like this we are changing from एक्टिव टू पैसिव वर्ब्स। तो वही सेम है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हैज हैड की जगह हम लोग लगा रहे हैं हैड। ठीक है, सो बिल्कुल मिलता जुलता है प्रेजेंट की तरह ही, कुछ खास फर्क नहीं है। सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वही सेम है, ये कंटिन्यूअस में बीइंग लगेगा और परफेक्ट में बीइंग लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टेंस। नाउ वी हैव द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में हमें दो पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। याद रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर। तो फॉर एग्जाम्पल या एक सेंटेंस है यहाँ पर, यू विल कैच द बस, फर्स्ट बस, तुम पहली बस पकड़ोगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर शैल बी या विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो यू विल कैच द फर्स्ट बस, इसमें द फर्स्ट बस जो है इसमें फर्स्ट बस जो है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, सो दैट विल कम इन फ्रंट द फर्स्ट बस। अब विल बी शैल बी की जगह में यहाँ पे विल यूज हुआ है तो लोग विल बी लगाएंगे। फिर कैच का थर्ड फॉर्म कॉट बाय यू, द फर्स्ट बस विल बी कॉट बाय यू। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में मालूम है कि उन चीजों की बात होती है जो बेसिकली जो काम हो चुके होंगे। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट टाइम तक पहुंचने के बाद। फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव प्लेड अ मैच, वो लोग मैच खेल चुके होंगे। ठीक है, अब इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो सबसे आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे न्यू चीज क्या ऐड हो गई है, यहाँ पे हैव बीन तो पहले से हम लोगों ने पढ़ा था जो परफेक्ट में लगता है, जो फ्यूचर जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो न्यू चीज यहाँ पर ऐड हुई है विल या फिर शैल, क्योंकि फ्यूचर का है इसलिए आगे शैल और विल लग जाएगा। तो लेट्स से देयर इज अ सेंटेंस दे विल हैव प्लेड अ मैच, जिसका हो जाएगा अ मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, तो अ मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अ मैच विल हैव बीन, तो विल लग गया, फिर हैव बीन हो गया, फिर प्लेड, फिर सब्जेक्ट बाय लगकर सब्जेक्ट, विल हैव बीन प्लेड बाय देम। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी चेंज द टेंसेस, you know, from active to passive. So the tense does not change. टेंस का कोई चेंज नहीं होता, वो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है
या फ्यूचर परफेक्ट में अभी भी वो फ्यूचर परफेक्ट में ही है, बस यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज हो जाता है, ठीक है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाती है। अच्छा, परफेक्ट के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे वर्ब की वही फॉर्म जो पहले से एक्टिव में थी वही उठाकर पैसिव में लगा देनी होती है, क्योंकि पहले से ही वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, तो वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, ठीक है। इसका ध्यान हमको सिंपल और कंटिन्यूअस के केस में रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस ऐसे हैं जहां पे हम लोग पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, जो कि कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों का पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर टिल? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हो जाएगा इनटू, समझना है? देखो ये तो एंटी हो गया, ठीक है। अब देखो इधर एक काम करो, जो ऊपर जाना चाहते हो उनको ऊपर भेजो, जो नीचे जाना चाहते हो उनको नीचे भेजो। तो यहाँ पे है कितना 5 5 5 5 8 और यहाँ 4 है। नेक्स्ट टॉपिक इज डबल ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे में अब क्या करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाना है, अब 2 ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि वी हैव 2 पैसिव वर्ड्स, हमारे पास 2 पैसिव वर्ड्स हो जाते हैं, और क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को आगे लाया जा सकता है, तो एक अगर आगे लाया तो एक पैसिव वर्ड बना, और उसके अगर सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लाया तो दूसरा पैसिव वर्ड बना, ठीक है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस था, द टीचर गेव सीता अ प्राइज। नाउ सीता is the object here and prize is also the object here। यहाँ पे सीता भी प्राइज है, सीता भी ऑब्जेक्ट है और प्राइज भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे, अब इसका हम जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट 1, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट 2। सो वी हैव अ चॉइस, हम लोग चाहे तो सीता से भी शुरू कर सकते हैं और हम चाहे तो प्राइस से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो पहले लोग सीता से शुरू करते हैं। द टीचर गेव सीता अ प्राइज क्या हो जाएगा? सीता वाज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। तो सीता यहाँ पर आगे आ गया, गेव है यानी सिंपल पास्ट है तो वाज लगेगा, वाज का तो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। सीता वाज गिवन व्हाट? अ प्राइज बाय द टीचर। तो हर हाल में टीचर को पीछे ही रखना है क्योंकि टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट था। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट था तो टीचर को हम लोग हमेशा लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने सीता को ऑब्जेक्ट बनाया, अब सब्जेक्ट बनाया। अब हम लोग प्राइज को सब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे? अ प्राइज वाज गिवन टू सीता बाय द टीचर, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ऐड कर लिया क्योंकि प्राइज दिया किसको जा रहा है? सीता को, तो प्राइज आगे आ गया। अब अभी वाज गिवन ही है, जो रूल है वो रूल ही रहेगा। अब प्राइज वाज गिवन टू सीता बाय द टीचर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दोस केसेस वेयर वी हैव 2 ऑब्जेक्ट। जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे दोनों चॉइस है, हम लोग चाहे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को आगे ले आके सेंटेंस बना दे, चाहे तो सेकंड ऑब्जेक्ट को ले आकर सेंटेंस बना दे। अपने नीड के अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। Next we have one more type of conversion where we'll be converting interrogative sentences. That we'll do in the next term. Today I'll be doing only till here, till the conversion of double object. Okay? Rest we'll continue in the next lecture. Thank you.